तो बीएसई के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह आज हो रहा है मुंबई के अंदर, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं और वो इस वक्त अपना संबोधन दे रही है। सीधे चलते हैं। And 1,500 crores orders per day is not small in number. And I was just sort of looking at further breaking down this number. The average time taken to complete a transaction is less than 200 microseconds. If all this matters for a stock exchange, it is so important that you have stood up to the challenge of technology, and the benefits are accruing to all the shareholders in this stock exchange. And therefore, this is a beautiful journey of the financial sector, and this is all pervasive, and that is why I think it has a story of its own. 150 years is important, but together with it, the kind of milestones that you've achieved are very important. Much like the Wall Street, in the US, Sensex BSE's benchmark, the benchmark index of 30 top companies, is the sensitive pulse of the Indian economy, and that is there for everyone to recognize. From its start at around 550 points, that is in 1986, to touching a high of 80,000 points in July 2024, it has mirrored the resilience and the growth potential of the Indian economy itself. So, I think this is a barometer to show where Indian economy is strengthening, where it is moving towards, and therefore, even as we celebrate 150 years, we are celebrating how you mirror the growth potential of the Indian economy. All of us would have been familiar with the acronym VUCA. It is a VUCA world. It's full of volatility, uncertainty, complex and ambiguous paradigms which are shifting every day. One thing stands firm: the strength of the Indian economic fundamentals and the macroeconomic prudence with which the economy is being managed. We offer investors, who are the nerve centers of a stock exchange, we offer investors a combination of policy stability, growth, governance and innovation, macroeconomic policies, prudent policies, and democratic institutions and youthful dynamism. We have recognized the shifts which are underway when we presented the budget for 25-26. It had outlined a clear roadmap focusing on key priority areas, including agricultural productivity, rural development, inclusive growth, manufacturing, support to MSME, employment generation, innovation, energy security, and export promotion. We firmly believe that the most effective path to building economic resilience is to foster domestic efficiencies and competitiveness. India is confident much later than the COVID, now after the COVID, because of the calibrated approach that we took. India is confident that we will navigate these global disruptions with policy agility and long-term vision. Our focus remains firmly on building robust domestic foundation. And तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 150 साल बीएसयू का जश्न, और उन्होंने एक पूरी एक बात बताई कैसे बीएसई ने अपने आप को स्थापित किया दुनिया के एक जाने माने स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर। सेंसेक्स की वो पहचान बनी और भारत के लिए शेयर बाज़ार की जिस तरह की आज तस्वीर हम देखते हैं उसकी नींव रखने वाला ये एक्सचेंज। और भी क्या बातें वहाँ पर वित्त मंत्री करती हैं हम आपको पूरा विस्तार के साथ सुनाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल बाज़ार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आज बाज़ार कैसा रहा? तो जैसा कहा हमने कि एक छोटा हफ्ता था, सोमवार को छुट्टी थी, कल शुक्रवार को भी छुट्टी होगी, तो कुल 3 दिनों का ये हफ्ता रहा बाज़ार के लिए। और आज ये आखिरी दिन उस हिसाब से तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर बाज़ार का जोश
डबल हाई रहा। बाजार ने तेजी का चौका लगाया। सेंसेक्स निफ्टी करीब 2% की तेजी के साथ बंद हुए हैं और सेंसेक्स 1500 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 78,533 पर, तो निफ्टी 414 पॉइंट चढ़कर 23,852 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी जोरदार तेजी रही। आज के बाजार में निफ्टी बैंक ने करीब 2% से ज्यादा की बढ़त हासिल की। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी आज अच्छी खासी तेजी दिखाई। सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर्स आज जो बढ़त पर बंद हुए हैं। बैंकिंग, इंफ्रा, तेल, गैस सब में तेजी देखने को मिली। फार्मा, एनर्जी, ऑटो इंडेक्स भी आज हरे निशान पर अपने आप को बनाए रखने में कामयाब रहे। तो बाजार में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। इस राहत की वजह क्या है, इसको डिकोड किया इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम ने। सुनील सुब्रमण्यम के मुताबिक अब भारत को लेकर एफआईआई का आउटलुक बदलेगा। बैड न्यूज हो तो वो सर्टेनिटी बैड न्यूज, कितना बैड, कितना खराब, किसके लिए खराब, अगर ये क्लैरिटी मिलती है तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो पहली चीज है कि ये पॉज ही एक क्लैरिटी की चीज, यानी कि ट्रंप भी कुछ और वॉइसेस को सुनते हैं, खाली चाहे वो बॉन्ड मार्केट की वॉइस सुने, चाहे वो दूसरे देश के काउंटर अटैक की वॉइस सुने, जो भी है। तो एक चीज जो सामने आई है कि ट्रंप जो भी उन्होंने कहा उसी को इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। कुछ ना कुछ राहत होगा, अभी पॉज के जरिए होगा, कल इंडिविजुअल डील्स हर देश के साथ नेगोशिएट करके होगा। वो एक बात, ओवरऑल एक एफआईआई की मन में ये एक क्लैरिटी आ रही है। मैं रीजनेबल की टेरिटरी में लार्ज कैप को कहूंगा, मिडिल स्मॉल कैप को अभी भी थोड़ी रीजनेबल से आगे हैं, क्योंकि उम्मीदें हैं कि मिडिल स्मॉल कैप की अर्निंग्स बेहतर आएगी। राइट, तो क्या बाजार की सभी चिंताएं अब दूर हो गई और एफआईआई के आने के साथ बुल्स ने अब अपना दम दिखाना शुरू कर दिया? आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। ना रुकेगा ना झुकेगा। 7:57 पर आज का आवाज अड्डा। बड़े कॉर्पोरेट्स में गवर्नेंस फेल्योर का असर बाजार पर पड़ सकता है, यह कहना है सेबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे का। सीआईआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिट में बोलते हुए सेबी चेयरमैन ने कहा कि वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए ऐसे फेलियर्स को रोकना जरूरी है। So governance failures in large corporates can have ripple effects across the market and economy. Preventing such failures is essential to maintaining financial stability. By mandating disclosures, board structures, and oversight mechanisms, we aim to create a self-regulating environment that encourages ethical and responsible corporate behavior. We are conscious that over-regulation can stifle growth and innovation. At the same time, too little regulations can also lead to decline in trust of stakeholders and adversely impact growth. Thus, there is a need for optimum regulation. Regulations need to be rationalized by removing what is no longer relevant and reducing overlaps. We need to move from a thinking of minimum compliance to maximum governance. Boards must rise above routine and ask difficult questions, and auditors and independent directors must act as gatekeepers of integrity. बात करेंगे वक्फ बोर्ड वाले मामले की। वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत नियुक्तियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। ज्यादा डिटेल्स के साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, बड़ी सुनवाई थी आज, इस पर अंतरिम आदेश में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या मेजर डिटेल्स हैं? वक़्फ़ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई की शुरुआत में ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें इसके साथ बहुत सारे दस्तावेज फाइल करने हैं, इसीलिए उन्हें जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस मांग को मान लिया और सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का मोहलत दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि इस मामले में अब यथास्थिति बनी रहेगी। वक्फ बोर्ड या काउंसिल के ऊपर कोई भी नई नियुक्तियां नहीं होंगी। जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनका भी स्टेटस को पहले की तरह ही रहेगा। तो अब जो सरकार है उसको 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करना पड़ेगा और दूसरी पार्टियों को 5 दिनों के अंदर उसके बाद रिजॉइंडर दाखिल करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में अब तक 140 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और सबकी सुनवाई कर पाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सूचीबद्ध कीजिए और 5 ऐसी याचिकाओं को हमारे सामने लेकर के आइए जिसके ऊपर हम सुनवाई कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 5 मई को करेगा और तब तक यथास्थिति बनी रहेगी।
जी असीम, इधर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सरकार वक्फ नियम को सुधार बता रही है, लेकिन असल में वो अधिकारों पर प्रहार है। जिसे सरकार सुधार बता रही है वह दरअसल अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ अधिनियम कोई प्रशासनिक कदम नहीं है, प्रशासनिक कार्यकुशलता का कोई कदम नहीं है, बल्कि ये एक मूल वैचारिक हमला है। यह न सिर्फ धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर चोट करता है, बल्कि अल्पसंख्यकों की आत्मनिर्णय स्वायत्तता की भावना को कुचलता है। ये सत्ता की दखलंदाजी को सुशासन कहकर पेश करता है। बड़ी अजीब विडंबना है। विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट के अंतरिम आदेश को वक्फ कानून के खिलाफ बताया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। इधर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी अपनी अर्जी में वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। अमानतुल्लाह खान ने वक्फ कानून को असंवैधानिक बताया है। देखिए, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ करके हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने आकर कहा कि जो भी हम किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन हम नया नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो वक्त बाय यूज़ इस्तेमाल होती आई हैं प्रॉपर्टियाँ वो रहेंगी, जो मसाजिद हैं, जो दरगाहें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, तमाम ऐसे ही रहेगा। और वक्त के जो मेंबर हैं उसके अंदर भी किसी किस्म की वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम बात करेंगे गुरुग्राम लैंड स्कैम की केस की, जहां पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। वाड्रा सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ ईडी दफ्तर तक गई। ईडी अब तक वाड्रा से 2 दिनों में 8 घंटे पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा लंच के लिए निकले तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो 2019 में भी जवाब दे चुके हैं, 2 बार क्लीन चिट मिल चुकी है। मैं सभी सवालों के जवाब दे रहा हूं, फिर बुलाने का मकसद क्या है, ये उनका सवाल था। 2019 के बाद जब मैं 15 बारी गया हूं, 10-10 घंटे बैठा हूं और सारे सवाल के जवाब दिए हैं। अब 7 साल बाद वही विषय में दोबारा बुलाने का मेरे को मकसद समझ नहीं आ रहा, पर मकसद फिर पक्का हो जाता है कि उसी दिन चार्जशीट होती है सोनिया जी और राहुल की। तो ये टोटल पॉलिटिकल विच हंट है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनुभव है मेरा लोगों के बीच में। और लोगों की सोच ये है कि गलत दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में छापेमारी की है। गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में एफसीआरए नियमों के उल्लंघन का आरोप है। सीबीआई ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर हमला भी बोला है। भाई दुर्गेश पाठक जी के घर पे सीबीआई को मोदी जी ने भेज दिया धमकाने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कहा कि गुजरात में जाके संगठन मजबूत करो। उस गुजरात में जहां 14% वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था, उस गुजरात में जहां 5 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचते हैं, संगठन की मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, गांव-गांव में कैसे संगठन मजबूत होगा इस बात की कोशिश करते हैं। आज धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी मोदी जी ने। यह है आपका राजनीति करने का तरीका,
यह है आपका लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को खत्म करने की कोशिश। वहीं बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दुर्गेश पाठक पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी ही पार्टी में चंदे में गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति हैं जो कथित रूप से लालू यादव से भी आगे निकल चुके हैं। हमने कई तरह के चंदे चोर सुने हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का करिश्मा है कि ये पार्टी तो चंदाखोर पार्टी है। ये अपनी ही पार्टी का चंदा कैसे खाया जाता है उसका उदाहरण दुर्गेश पाठक ने दिया है। लालू का हम सुना करते हैं कि वो भैंस का चारा खा गए, लेकिन ये तो अपनी पार्टी का चंदा खा गए। ये तो लालू से भी भ्रष्ट है। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हो गए हैं कि एक स्टेट के प्रभारी सह प्रभारी बनाने से बाकी पार्टियों को फर्क पड़ता है। क्या है जिनका? दिल्ली सरकार ने डमी स्कूलों पर एक्शन शुरू कर दिया है। ये स्कूल सिर्फ कागज पर छात्रों का एडमिशन लेते हैं, उन्हें पढ़ाते नहीं। क्या है ये पूरा गोरख धंधा? जानने के लिए आज हम बात करेंगे कंज्यूमर अड्डा में 5:57 पर डमी स्कूल गोरख धंधा। आज का कंज्यूमर अड्डा, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। ट्रम्प टैरिफ पर 90 दिनों से विराम से एक्सपोर्टर्स ने राहत की सांस ली है। इस दौरान वो पेंडिंग ऑर्डर्स पूरा करने में दिन रात जुटे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसी दौरान भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर सकारात्मक बातचीत हो जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिमल पिछले 30 साल से अपैरल और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट बिजनेस में है। इनका मुख्य कारोबार यूरोप और अमेरिका में है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से परेशान बीमल के लिए 90 दिन की रोक एक मौका है कि कम ड्यूटी पर पेंडिंग ऑर्डर पूरा कर सके। बिमल के मुताबिक फिलहाल जो 10% की ड्यूटी लागू है उसे एक्सपोर्टर और रिटेलर आधा आधा बांट रहे हैं, लेकिन अगर 90 दिन में कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता है तो शॉर्ट टर्म में नुकसान होना तय है। शॉर्ट टर्म में हिंदुस्तान को नुकसान होगा क्योंकि वो बायर्स को छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ डिस्काउंट उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग रन में चूंकि हमारे कंपिटिटिव कंट्री के मुकाबले में जो हिंदुस्तान पे ड्यूटी लगी है वो बहुत कम है, बहुत कम नहीं कह सकते, कम है, तो उसका एडवांटेज हमें मिलेगा। और अगर हम हमारी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं और ये ड्यूटीज रिमेन करती है तो हिंदुस्तान आने वाले साल 2 साल में बहुत फ़ायदे में रहेगा। बिमल की तरह ही हाई एंड होम फर्निशिंग का एक्सपोर्ट करने वाली नंदिता डींगरा भी आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करने लगी हैं। कैपेसिटी बढ़ा दी गई है और दिन रात अलग अलग शिफ्ट में काम किया जा रहा है। हालांकि नंदिता इसे एक्सपोर्टर्स के लिए आपदा में अवसर मानती हैं। जो अभी हमारे एक्टिव ऑर्डर्स हैं, हमने अपनी प्रेजेंट कैपेसिटी को स्केल अप कर दिया है। हमारे कस्टमर्स की तरफ से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, पर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अपनी शिपमेंट्स को डिस्पैच कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है और हमारे ऑपरेशंस पूरी तरह से स्टेबल हैं। 90 दिनों का ये वक्त देश भर के एक्सपोर्टर्स के लिए बेहद अहम है। हालांकि सबकी नजरें टिकी हैं दोनों देशों के बीच चल रहे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ी बातचीत पर, और अगर ये बातचीत सफल रहती है तो निश्चित तौर पर देश भर के एक्सपोर्टर इस टैरिफ चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। हालांकि चीन, वियतनाम, बांग्लादेश के मुकाबले भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ कम है और जानकारों के मुताबिक भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए लंबे समय में टैरिफ फायदा भी पहुंचा सकता है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आज 7:57 पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं आवाज़ अड्डा, जहां फोकस होगा मार्केट पर कि बुल जो है हमारा ना अब झुकेगा ना रुकेगा। बाजार में तेजी से परिस्थितियां बदली है, बाजार में एक बार फिर हरा रंग छाया है। अब ये कितना परमानेंट है, कितना दौड़ेगा ये बुल का, कितना आगे चलेगा, इस पर पूरी बातचीत होगी। जरूर जुड़िएगा। ना झुकेगा ना रुकेगा 7:57 पर आज का आवाज़ अड्डा।